In our today's lecture, we will discuss how to find the maxima and minima of a function. हम एक फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा किस तरह ढूंढेंगे वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. Now I have the problem. The first problem is f of x is equal to x cube minus 6x square plus 9x minus 8. So ये जो मेरे पास फंक्शन दी है, I have to find its point of maxima and point of minima. इस फंक्शन का मुझे point of maxima और point of minima ढूंढना है. f of x is equal to x cube minus 6x square plus 9x minus 8. So that's my problem today. Point of maxima और point of minima मैं कैसे निकालूंगा? आप लोगों को मालूम है कि मैंने बताया कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन होगी, उसका ग्राफ ऐसे होगा, then obviously at this point, for example at the point C, the function attains the maximum value, है ना? The function attains the maximum height. और on the left of the C, अगर आप tangent किसी भी point पर ड्रा करेंगे, वहां पर आपको डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन dy by dx मिलेगा ग्रेटर देन 0, एंड ऑन द राइट you will get dy by dx less than 0, and at this point आपका जो dy by dx मिलेगा that will be equal to 0. फिलहाल ये सब चीजें हमने डिस्कस की है. उस वक्त हम इस पॉइंट C को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और मतलब कैसे पता चलेगा? अब अगर डेरिवेटिव साइन चेंज करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, देख लीजिए एट दिस पॉइंट द डेरिवेटिव इज पॉजिटिव एंड ऑन द राइट ऑफ द सी द डेरिवेटिव इज नेगेटिव. सो इफ द डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, we will say that x is equal to c is the point of maxima, and maximum value of the function at this point is f of c, because this height is called maximum value of this function, and this height is called the f of c. This height can be found by f of c. Likewise, point of minima मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था. Point of minima कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन होगी, it's like this. So at this point x is equal to c, the function attains the minimum value. ठीक है. On the left of the c, if you take the tangent, then you will see that dy by dx is less than 0, and on its right you will see that dy by dx is greater than 0. So at this point अगर आप tangent ड्रा करेंगे, उसका स्लोप 0 आएगा. वो सब तो हमें मालूम है, उसका स्लोप 0 आएगा. तो मैं कह रहा हूं, मैं उस वक्त कहूंगा x is equal to c is the point of minima. या if the derivative changes sign from negative to positive when I will move across the point c, then x is equal to c is called the point of minima, and at x is equal to c, the derivative of the function with respect to x is equal to 0, because the tangent comes out to be parallel to x-axis. So these concepts we will apply here to find the maximum value of f of x and minimum value of f of x. First of all, we have to find the points of maxima and minima. First of all, मैं differentiate करूंगा f of x को with respect to x. That will be denoted by f prime of x, and that will be equal to 3x square minus 6 into 2 is 12x plus 9. So at the turning point, जो हमारा turning point होता है maxima या point of minima, वहां पर f prime of x 0 होता है. मैं कहूंगा at turning points f prime of x is equal to 0. f prime of x ये हुआ, that's 3x square minus 12x plus 9 is equal to 0. तो जब मैं इसको 0 के साथ इक्वेट करूंगा, I will get the turning points. फिलहाल मैं 3 को बाहर निकालूंगा, मेरे पास बचेगा x square minus 4x plus 3 that is equal to 0. 3 उठेगा और 0 के साथ चला जाएगा. I want to factor out this polynomial. This I think it will be equal to x minus 1 into x minus 3. x minus 1 into x minus 3. अब देख लीजिए, इसमें जब मैं x का वैल्यू 1 दूंगा, ये बनेगा 1 minus 4 plus 3, वो तो 0 बन जाएगा. जब मैं minus 3 दूंगा, 3 square is 9 minus 4 into 3 is 12 plus 3
3 plus 9 is 12, 12 minus 12 is 0. So x minus 1 और x minus 3 इसके zeros होंगे, फैक्टर्स होंगे. Therefore x will be equivalent to, जब मैं x minus 1 को 0 के बराबर इक्वेट करूंगा, x will be equivalent to 1. जब मैं x minus 3 0 के बराबर इक्वेट करूंगा, x will be equivalent to 3. तो x के दो वैल्यूज आ जाएंगे 1,3. अब आई एम नॉट श्योर कि x is equivalent to 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, x is equivalent to 3 पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. ये हम कैसे देखेंगे, देख लीजिए. अब हमें देखना है ऑन द लेफ्ट ऑफ 1 के लेफ्ट साइड में. मिसाल के तौर पर ये मेरा 1 है, इसके लेफ्ट साइड में अगर डेरिवेटिव आ गया पॉजिटिव एंड ऑन इट्स राइट अगर डेरिवेटिव आ गया नेगेटिव, तो मेरा ये जो x is equivalent to 1 होगा, वहां पर फंक्शन अटेन करेगी मैक्सिमम वैल्यू. एंड इन कंट्ररी टू दिस, इसके मुकाबिल में at x is equivalent to 1, if the derivative changes sign from negative to positive, then x is equivalent to 1 is the point of minimum. The same technique we will apply with x is equivalent to 3. फिलहाल x is equivalent to 1 पर ये टेक्निक देखते हैं. डेरिवेटिव को देखना है. ऑन द लेफ्ट ऑफ x is equivalent to 1, x is equivalent to 1 के लेफ्ट साइड में जाइए, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में, इन द विसिनिटी ऑफ 1. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मिसाल के तौर पर 0.5 दूंगा, देख लीजिए f प्राइम ऑफ 0.5, तो जरा मुझे बताइए क्या आएगा. 3 इंटू, या इसके फैक्टर्स भी आ गए ना, मिसाल के तौर पर ये नहीं आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3. तो अगर मैं f प्राइम ऑफ 0.5 देखूंगा तो x के बदले मुझे लिखना पड़ेगा 0.5, ये भी 0.5. आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. 0.5 को जब मैं माइनस करूंगा 1, वो तो नेगेटिव बनेगा. 0.5 को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 3, वो तो नेगेटिव बनेगा. नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव. सो ऑन द लेफ्ट ऑफ 1, जब मैं 1 के लेफ्ट साइड में गया, द डेरिवेटिव कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. एंड ऑब्वियस सी बात है, जब मैं राइट जाऊंगा द डेरिवेटिव विल कम आउट टू बी नेगेटिव. देखते हैं. आप पूछेंगे सर कैसे, चूंकि मेरा जो f प्राइम ऑफ x है वो मैंने फैक्टर करके निकाला 3 टाइम्स x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3, x माइनस 3. गो ऑन द राइट ऑफ 1. फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक 1.1. 1.1 तो 1 के राइट में है, तो जरा देख लीजिए f प्राइम ऑफ 1.1 कितना आएगा. दैट्स 3 टाइम्स 1.1 माइनस 1, वो तो पॉजिटिव आ जाएगा. 1.1 माइनस 3, 1.1 माइनस 1 वो तो पॉजिटिव आएगा. 1.1 माइनस 3 वो तो नेगेटिव आएगा. पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव. सो मैंने देखा जब डेरिवेटिव, जब हम 1 के लेफ्ट साइड में गए डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया, जब राइट साइड में गए तो डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया. तो हम गेस कर सकते हैं इसका ग्राफ ऐसे होगा. x is equivalent to 1. On the left, the derivative means slope of the tangent is positive. On the right, the slope of the tangent is negative. Obviously बात है. और at x is equivalent to 1 slope तो obviously 0 मिलेगा, क्योंकि मैंने f प्राइम ऑफ x को 0 के बराबर रखा है. तो मैं नहीं कह सकता हूँ x is equivalent to 1 is the point of minima. x is equivalent to 1 is the point of minima. इसके बाद हमें ऐसे लिखना है एग्जाम में. एग्जाम में किस तरह लिखेंगे हम, since the derivative f prime of x changes sign from positive to negative as we move from left to right across x is equivalent to 1. Therefore इसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. Therefore by first derivative test, x is equivalent to 1 is the point of maxima. And what is the maximum value of the function? That is f of 1. And the maximum value of the function is आप x का वैल्यू उसमें 1 डाल दीजिए तो बनेगा 1 क्यूब दैट इज 1, 6 into 1 square that is 6, 9 into 1 is 9 minus 8.
1 माइनस 6 इज माइनस 5 प्लस 9 माइनस 8, माइनस 5 प्लस 9 हो गया प्लस 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 इज माइनस 4. सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. इससे मैक्सिमम वैल्यू आ ही नहीं सकता है. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है x is equivalent to 1 and the maximum value of the function is minus 4. Likewise दूसरा पॉइंट हमारे पास था x is equivalent to 3. वो भी हम देखते हैं. चूंकि जब मैंने इस f prime of x को लिया था that was 3 times x minus 1 multiplied by x minus 3. जब मैं x is equivalent to 3 को टेस्ट करूंगा, ये तो मुझे एक टर्निंग पॉइंट मिला था. I want to test whether it is point of maxima or whether it is point of minima. So on the left of 3, दूर नहीं ज्यादा जाना है 3 से, इसकी विसिनिटी में ही रहना है. 2.5 ले लीजिए. तो जरा आप देख लीजिए ऑन द लेफ्ट ऑफ 3, फॉर एग्जाम्पल एफ प्राइम ऑफ 2.5 कितना आएगा, दैट इज 3 टाइम्स 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 1, फिर 2.5 माइनस 3. सो 2.5 माइनस 1 दैट्स पॉजिटिव, 2.5 माइनस 3 दैट्स नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव. सो ऑन द लेफ्ट ऑफ द 3 we have the sign of the derivative negative. चलते हैं अब on the right of the 3. जब मैंने on the left of the 3 निकला, ये 3 है, the derivative of the sign is negative. And on the right of the 3, for example, I will take 3.1. You see what is f prime of 3.1? Sign of the derivative I am going to test. That is 3 times 3.1 minus 1 into 3.1 minus 3. 3.1 माइनस 1 वो तो पॉजिटिव है, 3.1 माइनस 3 वो तो पॉजिटिव अगेन है. पॉजिटिव इज वेल इट इज पॉजिटिव. सो ऑन द लेफ्ट ऑफ द 3 आई हैव द साइन ऑफ द डेरिवेटिव नेगेटिव, ऑन द राइट ऑफ द 3 आई हैव द साइन ऑफ द डेरिवेटिव पॉजिटिव, एंड एट द पॉइंट 3 आई नो दैट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 0. तो ये फंक्शन हमारी इस तरह होगी. सो x इज इक्वल टू 3 होगा पॉइंट ऑफ मिनिमा. आपको वैसे ही लिखना है, since the derivative changes sign from negative to positive as we move from left to right across the point 3. Therefore x is equivalent to 3 is the point of minima, and minimum value of the function is minimum value of fx is वो आएगा f of 3 कितना आएगा, दैट इज 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स 3 माइनस 8. 3 क्यूब इज 27 माइनस 6 इंटू 3 दैट इज 18 प्लस 9 इंटू 3 दैट इज 27 माइनस 8, 27 प्लस 27 दैट इज आई थिंक 54, माइनस 18 माइनस 8 दैट इज माइनस 26. वेरी गुड. तो 54 माइनस 6 वो तो आ गया, आई थिंक दैट इज 28. हाँ दैट इज 28. सो 28 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है -4 एंड मिनिमम वैल्यू हो सकता है 28. ठीक है भाई. सो दिस इज इन द विसिनिटी, दे आर कॉल्ड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. 3 के इंटरवल में मैं कह रहा हूं, 3 का जो विसिनिटी होगी, 3 का जो नेबरहुड होगा, आई एम टॉकिंग ऑफ द नेबरहुड ऑफ x इज इक्वल टू 3. 3 का जो नेबरहुड होगा, 3 के नेबरहुड में रहना है, तो फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उधर होगा 28, 3 के नेबरहुड में. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह जाऊंगा, यहां पर हो सकता है और कहीं पर और ज्यादा मिनिमम वैल्यू आ जाए. आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दैट. मैं कह रहा हूं 3 का जो नेबरहुड होगा, मतलब 3 के करीब ही जाना है, 3 के ज्यादा दूर नहीं जाना है. ठीक है. 3 का जो विसिनिटी होगा, उसमें जो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा वो 28 होगा. सो दिस वाज वन टेक्निक हाउ टू चेक whether a point is the point of maxima or whether a point is the point of minima. We have one more test. थोड़ा सा मैं आपको एक प्रॉब्लम दूंगा. एक प्रॉब्लम मेरे पास इस तरह है, कोई अच्छी सी प्रॉब्लम मैं आप लोगों को देता हूं, बाकी तो आप लोग कर सकते हैं. हाँ, ये प्रॉब्लम जरा मुझे बताइए. For example, I have
फंक्शन एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। यू जस्ट फाइंड द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड पॉइंट्स ऑफ मिनिमा एंड फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, दैट्स योर जॉब। तो आप मुझे बताएंगे तो अच्छी बात है। एक होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा व्हाट डू वी मीन बाय पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्रिटिकल पॉइंट्स तो आपको मालूम है, थोड़ा सा मैं फिर से बता देता हूं। क्रिटिकल पॉइंट्स तो आपको मालूम है, या टर्निंग पॉइंट्स, यहां तक फंक्शन डिक्रीजिंग होती है, उसके बाद इंक्रीजिंग होती है, या अप टू दिस पॉइंट द साइन ऑफ द डेरिवेटिव is either negative or positive. Here in my case it is negative, and then after this point, on the right of this point, the derivative dy by dx is greater than 0 or less than 0. मगर point of inflection पर ऐसा नहीं होता है। point of inflection पर क्या होता है? point of inflection पर जो sign of the derivative होती है that never changes. For example, अगर मैं ये x is equal to c लूंगा, हर कोई कहेगा सर अगर हम यहां पर टेंजेंट ड्रा करेंगे वहां पर तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट dy by dx दैट विल बी इक्वल टू 0। बट बिफोर दिस पॉइंट अगर आप यहां पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, ऐसे टेंजेंट ड्रा करेंगे, ऑफ कोर्स आपको इसे चढ़ना है तो dy by dx इज ग्रेटर देन 0। आफ्टर दिस पॉइंट आप टेंजेंट इस तरह ड्रा करेंगे, व्हाट अबाउट dy by dx? इट इज स्टिल ग्रेटर देन 0। means on the left of this point the slope of the tangent is positive, and on the right of this point the slope of the tangent is positive. And if this thing happens, we call this point to be the point of inflection, जहां पर डेरिवेटिव 0 आ जाएगा जिस पॉइंट पर, एंड डेरिवेटिव अपनी साइन चेंज नहीं करेगा when we will move across this point। देखो दो कंडीशंस हैं, जहां पर डेरिवेटिव, जिस पॉइंट पर डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, and if the derivative will not change its sign, if we will move across this point from left to right, if the sign of the derivative is positive and on the right it will be again positive, या अगर derivative of the derivative की sign होगी negative on the left and on the right it will be again negative, means derivative will not change the sign, then we will call this point to be the point of inflection। ठीक है, not critical point, या not turning point, because the function keeps its behavior beyond this point and after this point। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने जिससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा, जहां पर मुझे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ढूंढना होगा। मिसाल के तौर पर आई हैव द फंक्शन f of x is equal to that is x minus 2 raised power 4 and that is x plus 1 raised power 3। x plus 1 raised power 3। So I had find point of inflection, point of maxima, point of minima, वो चीजें मुझे ढूंढनी है। So first of all, if you will do f prime of x, you need to first of all find f prime of x। देख लीजिए, इसको प्रोडक्ट रूल लगेगा जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। ये बनेगा 4 टाइम्स x माइनस 2 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, ऐसे रखेंगे, प्लस फिर मैं क्या करूंगा, x माइनस 2 में ऐसे रखूंगा, ये जो मेरे पास x प्लस 1 का होल क्यूब है इसको मैं लिखूंगा 3 टाइम्स x प्लस 1 का होल स्क्वायर। वी आर ऑल कंफर्टेबल विद द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, विद द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। उसके बाद थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन, एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मैं एक्स माइनस 2 को कॉमन निकालूंगा, मैंने निकाला, वो यहां पर भी है यहां पर भी है, एक है यहां पर 3 है, तो मैं एक ही कॉमन निकाल सकता हूं। यहां पर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहां पर एक्स प्लस 1 का होल क्यूब है, तो मैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकालूंगा। मैंने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा 4, और यहां पर बचेगा एक्स माइनस 2, 3 थे तो 2 रहेगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इनटू अंदर बचेगा, यहां पर मैं लिख देता हूं 4 टाइम्स, जब मैंने x माइनस 2 को कॉमन निकाला ये बचेगा x माइनस 2 रेज पावर 2, फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला तो यहां पर बचेगा खाली x प्लस 1,
फिर प्लस, फिर मैंने x माइनस 2 को कॉमन निकाला, वो तो रहेगा नहीं वहां पर, फिर 3 तो ऐसे ही बचेगा, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर वो भी मैंने कॉमन निकाला। तो आपके पास फंक्शन इज लाइक somehow like this, यह फंक्शन somehow like this, जिसके अगर मैं इसके फर्दर फैक्टर्स निकालूंगा, अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे फिर फैक्टर्स निकालेंगे, आप वो कर लेना अपनी कॉपी पर, या मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूं आपको रेफरेंस का। इट विल बी इक्वल टू x माइनस 2 रेज पावर 3 इंटू x प्लस 1 रेज पावर 2 इंटू 7x माइनस 2। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे आप वो कर लेना अपनी रफ कॉपी पर, अगर किसी को नहीं आएगा प्लीज मैसेज मी, आई विल शो यू हाउ टू डू इट, हाउ टू फाइंड द फैक्टर्स। देन यू फाइंड f प्राइम ऑफ x, यू पुट दैट इक्वल टू 0, मीन्स ये क्वांटिटी मुझे 0 के बराबर रखनी है, x माइनस 2 का होल क्यूब फिर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 7x माइनस 2 मैंने 0 के बराबर रखा, और उधर x के वैल्यूज आ जाएंगे, एक तो आएगा 2 माइनस 1 और आ जाएगा 2/7। मैं बताऊंगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये कह रहा है x इज इक्वल टू 2 है, बाकी इन दो पॉइंट्स को आप खुद देख लेना, बट देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, दैट इज x इज इक्वल टू 2। देख लीजिए ये मेरे पास है f प्राइम ऑफ x, मैं ये लेता हूं x इज इक्वल टू 2। ऑन द लेफ्ट ऑफ 2 फॉर एग्जाम्पल यू विल टेक 1.9, वो मैं f प्राइम ऑफ x में डाल देता हूं 1.9, दिस इज 1.9 1.9 माइनस 2, आई थिंक दैट इज नेगेटिव, ऊपर क्यूब है वो तो नेगेटिव आ जाएगा, 1.9 प्लस 1 ऊपर स्क्वायर है वो तो पॉजिटिव ही है, स्क्वायर ऑफ ए क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, 1.9 इंटू 7 माइनस 2, 1.9 इंटू 7 दैट विल बी बिगर देन 2, फिर 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए वो तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वो तो नेगेटिव आ जाएगा। लाइकवाइज ऑन द राइट ऑफ 2, जब मैं 2 के राइट में जाऊंगा 2.1 में लूंगा, देख लीजिए प्राइम ऑफ 2.1 कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 2.1 माइनस 2, 2.1 माइनस 2 वो तो पॉजिटिव आ जाएगा, ऊपर क्यूब है वो फिर भी पॉजिटिव आ जाएगा, फिर 2.1 प्लस 1 का होल स्क्वायर वो भी तो पॉजिटिव आ जाएगा, इंटू 2.1 वो भी तो पॉजिटिव आ जाएगा, बिंगो आई एम गेटिंग पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो x is equal to 2 is the point of sorry, it is not the point of inflection, it's the since the derivative change sign from negative to positive, so x is equal to 2 is the point of minima according to first derivative test। मुझे देखना था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, सॉरी ये कह रहा है x is equal to -1 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, देखो देख लीजिए इट विल कीप इट्स साइन प्रिजर्व्ड, x is equal to -1, सॉरी मुझे गलत हुआ था, x is equal to -1 ऑन द लेफ्ट ऑफ -1 आप 0 ले लीजिए, देख लीजिए f प्राइम ऑफ 0 क्या आ जाएगा, वो 0 तो ज्यादा दूर तो नहीं होगा, हाँ -1 के लेफ्ट में 0 नहीं है, -1 के लेफ्ट में आएगा -1.1 -1.1 -2 वो तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव का के ऊपर ऑड पावर वो तो नेगेटिव आ जाएगा, आ गया नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई -1.1 प्लस 1 वो तो नेगेटिव आएगा, मगर ऊपर स्क्वायर है वो उसे पॉजिटिव बना देगा, -1.1 इंटू 7 वो तो नेगेटिव आ जाएगा, माइनस कीजिए 2 फिर भी नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वो तो पॉजिटिव आ जाएगा। सो ऑन द लेफ्ट ऑफ -1 आई हैव ए पॉजिटिव क्वांटिटी एंड ऑन द राइट आई मस्ट गेट द सेम क्वांटिटी एज पॉजिटिव, देख लीजिए बिकॉज x इज इक्वल टू -1 है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो जो इसके लेफ्ट में डेरिवेटिव की साइन होगी वही साइन होनी चाहिए राइट में भी, पॉजिटिव ही आना चाहिए हमें राइट में भी। तो ऑन द राइट ऑफ -1 आई विल टेक -0.5 ऑन इट्स राइट, देख लीजिए f ऑफ -0.5 क्या आ जाएगा, -0.5 -2 वो तो नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव का क्यूब तो नेगेटिव ही आ जाएगा, इंटू -0.5 प्लस 1 वो तो पॉजिटिव आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर वो फिर भी पॉजिटिव ही आ जाएगा,
माइनस 0.5 इंटू 7 वो तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर -2 कीजिए फिर भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव वो फिर भी पॉजिटिव ही आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया. So on the left of -1 there is positive sign, on the right of -1 there is positive sign, and at the -1 you have slope of the tangent 0 because हमने f prime of x को 0 के बराबर रखा, तभी तो मुझे मिल गया -1. मतलब वो पॉइंट मिल गया जहां पर slope of the tangent is 0, dy by dx is 0. So derivative keeps its sign preserved from minus. हाँ, तो जब -1 के लेफ्ट साइड में हम डेरिवेटिव लेते हैं तो उसकी साइन पॉजिटिव आती है, जब राइट में लेते तो उसकी साइन पॉजिटिव आती है. सो डेरिवेटिव कीप्स इट साइन प्रिजर्व्ड, इट डज नॉट चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. So I can say that x is equal to -1 is the point of inflection. And in our next lecture, inshallah, we will discuss second derivative test to find the point of local maxima and point of local minima. So this was all about today's lecture. मैं exercise आप लोगों को बाद में भेजता हूँ. Thank you very much.